Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Pre-Learning IELTS, and I'm here with you with my first YouTube video that I'm going to post on my YouTube channel. So I request you all to please subscribe my channel so that I can post and I can create some more videos in order to assist you with the difficult sections of IELTS like reading and writing. So today we are going to solve one of the passages that I have taken from Cambridge book number 10, test number 3, and it is passage number 2. So before I start, I would like to uh, introduce myself. My name is Satnam Singh, and I have just created this channel in order to assist students struggling with the reading section, especially those who are struggling with some sort of difficult question types like which paragraph contains the following information, list of headings, gap fills, true false not given. Such sort of questions I'm just going to solve it on YouTube videos. So I request you all please subscribe my channel so that I can create more videos for you guys. So let's begin with video. So today we have a reading that is the intersection of health sciences and geography. सो बिफोर आई स्टार्ट दोस्तों थोड़ा मैं हिंदी में भी यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को दोनों ही लैंग्वेजेस में समझ में आए। कुछ मैं सेक्शन इंग्लिश में रखूँगा और कुछ सेक्शन जो है वो हिंदी में रखने वाला हूँ। तो देखिए क्या है कि जब भी आपको रीडिंग, पहले तो मैं बताऊँ कि जो रीडिंग का फर्स्ट सेक्शन होता है वो कंपैरेटिवली ईजी होता है। रीडिंग का जो दूसरा पैसेज आएगा ऑफ कोर्स उसका लेवल इंटरमीडिएट हो जाएगा, और जो थर्ड सेक्शन है दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। सो ये सेक्शन, ये जो पैसेज है ये पैसेज 2 है। एंड इसमें देखो हमारे पास जो है वो पैराग्राफ्स दे रखे हैं, और पैराग्राफ्स वाइज लाइक ए बी सी काइंड ऑफ पैराग्राफ्स भी हैं। और उसके बाद हमारे पास जो हैं around 6 जो हैं, that is not good news for us. It is going to be the difficult type of questions. So which paragraph contains the following information? We have 6 type of questions, and then we have gap fills, about 7 gap fills we have. So in this video you will see what strategies examiners develop when they set your exams. So if you know the strategies of examiners, of course, IELTS is going to be just like a piece of cake for you guys. So what strategy we should follow when we solve gap fills, and what strategy we should follow when we solve questions like which paragraph contains the following information. Before I start, students, one thing just remember in your brain when you start solving gap fills, whenever you try to solve this type of questions, you know that in this type of questions examiners always checks your grammatical ability, your basics like part of speeches, we can say, like noun, pronoun, adjective, because there are certain blanks which require a noun, there are certain blanks or gap fills which require an adjective. Sometimes we also need an adverb. So मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो पहले आपने क्या करना है कि पहले आपने आपका जो ग्रामर का बेस है वो बहुत आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे ही आप आइएलटीएस से स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको थोड़ी ग्रामर की कोचिंग, आपको अच्छे से ग्रामर अपनी जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि आपको आइएलटीएस में डिफ़िकल्टीज कम आए। तो इससे जैसे कि मैं आपको जो है मैं एक एग्जांपल के थ्रू और कुछ मेरे पास मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है उसके थ्रू मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, प्रोनाउन, डिटर्मिनर्स। ये डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम गैप फिल सॉल्व करते हैं। जैसे ये आर्टिकल्स जिसको हम बोल देते हैं, जैसे ए, एन, द या दी भी इसको प्रोनाउंस करते हैं कुछ केसेस में। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको ये इसके ऊपर अच्छे से थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। जैसे ही आप गैप फिल सॉल्व करते हो, तो अभी मैं जब प्रैक्टिकल करूँगा तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। उसके बाद ये कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं, जैसे सम कहाँ पे लगता है, मीन सम की एग्जैक्टली उसकी जो प्रैक्टिकली नीड क्या है उसकी, वी कैन से कि वो कहाँ पे एप्लीकेबल है। सम, एनी, मैनी, फ्यू, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गैप फिल्स में। इवन के ये हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे हम नाउन की बात करें तो नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो एस के साथ प्लूरल में तब्दील हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ बुक, तो बुक का जो प्लूरल है ऑफ कोर्स वो उसके साथ अगर हम एस लगाएंगे तो इट विल बिकम बुक्स और ये प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से जैसे और भी बहुत सारे मीन्स दुनिया में अनकाउंटेबल एंड नंबर ऑफ नाउन्स है, उसकी कोई गिनती नहीं है। बट इसकी समझ आपको होनी चाहिए कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है नाउन क्या होते हैं, और नाउन के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज़ प्रोनाउन, उनको ये भी नहीं पता है प्रोनाउन क्या होते हैं। और थर्ड जो चीज़ है, जैसे एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो ये मैं किसी और दिन आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा अगर स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे इस वीडियो की। तो आई विल क्रिएट अ वीडियो सो दैट कि आपका जो ग्रामर का बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आए। तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स कि जो हम जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे नॉलेज, नॉलेज की अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इसको इस सेंटेंस की शेप में लिखना हो तो वी कैन से शी हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हम ये नहीं कह सकते कि शी हैज़ मैनी नॉलेज, शी हैज़ नंबर ऑफ नॉलेज, वी कांट से, बिकॉज नॉलेज जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके लिए हमें व्हाट वी हैव टू डू, आई मीन हमें नॉलेज के साथ हमेशा अगर या तो हम द लगा सकते हैं, मीन्स कि उसके साथ अ नहीं आ सकता, अ नॉलेज या फिर एंड नॉलेज, दैट इज़ ग्रामेटिकली इम्पॉसिबल। तो ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटी चेक करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप गैप फिल सॉल्व करते हो तो ग्रामेटिकल जो पॉसिबिलिटी है दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर को भी हम अनकाउंटेबल नाउन में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक दिन में कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू टेक इन अ डे। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते हाउ मैनी वाटर्स, नो वी कांट से। यस, अगर हम ग्लासेस की बात करें, कितने गिलास आप पानी पीते हो, तो उस केस में वो काउंटेबल नाउन बन जाएगा, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू टेक। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो गैप फिल्स में आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू शुरू करते हैं। तो जैसे मैं बात करूँ, अभी मेरे पास जो गैप फिल्स हैं, तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप ये है कि जैसे ही आपको गैप फिल्स आते हैं, सबसे पहले आपका काम है कि यू हैव टू स्कैन द लैंग्वेज और देखना है कि जो आपका जो एग्जामिनर है उसने ये ये जो गैप फिल्स हैं उसने कहाँ से उठाए हैं, उसने उसकी लोकेशन कहाँ पे है, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आपको लोकेशन सही मिलेगी तो तभी आप आंसर चेक करोगे। तो सबसे पहले आपने जो लोकेशन है उसको मतलब मार्क डाउन कर लेना है, और उसके बाद सेकेंडली आपने इसकी ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटी चेक करनी है, और फिर आपने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, सिंपली जैसे सपोज करो ये इसको पढ़ा और फिर वो वापस पैसेज में जाएंगे और एकदम से फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे। मीन्स एक तो इससे आपका टाइम खराब होगा, दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका आंसर कौन सा सही है कौन सा आंसर गलत है। मीन्स कि आपको वर्ड समझ में नहीं आएंगे कि कौन सा वर्ड आपको यहाँ पे लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर के आसपास घूमते रहते हैं लेकिन फिर भी उनको आंसर नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो स्टूडेंट इस वाली प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं कि सर हम आंसर को लोकेट भी कर लेते हैं, आंसर के आसपास होते हैं लेकिन फिर भी हमें आंसर्स नहीं मिलते हैं,
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो जैसे ये वाला जो, अगर मैं इसकी स्कैन लैंग्वेज की बात करूँ, तो अभी हमने ऐसे भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन पकड़ा और पीछे चले गए, फिर एक क्वेश्चन पकड़ा और पीछे चले गए, नो। गैप फिल्स या समरी जिसको बोलते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना है कि आपको पहले जो है वो सारी की सारी समरी को थोड़ा लोकेट करने की कोशिश करो। कई बारी क्या होता है कि कुछ एग्जामिनर थोड़ा इजी लेवल बनाते हैं एग्ज़ाम में, और उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि वो एक या दो पैराग्राफ में से समरी सारी उठा लेते हैं। तो कई बारी कुछ एग्जामिनर्स जो होते हैं वो पूरे का पूरे पैसेज में से एक एक क्वेश्चन जो है वो पिक करते हैं। तो ये सब स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो अगर आपको बिगनिंग के 4-5 मिनट जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस उनकी स्ट्रैटेजी समझ लोगे कि वो उन्होंने जो समरी बनाई है वो एक या दो पैराग्राफ्स में से उठाई है, या फिर उन्होंने वो जो समरी बनाई है वो पूरे पैसेज में से उठाई है, तो सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स मैटर अ लॉट। तो यही चीज़ हम करने जा रहे हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं, अगर हेल्थ केयर, यहाँ पे कुछ मेरे को ऐसे नाउन चाहिए जो एग्जामिनर रीफ्रेज नहीं कर सकता है। स्कैन लैंग्वेज क्या होगी? अभी बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि ये सारे पैसेज को हम कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे वर्ड्स को रीफ्रेज कर देते हैं। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिसको वो रीफ्रेज नहीं कर सकते हैं। अगर कर भी सकते हैं तो मीन्स कि आपको पता होना चाहिए इसका रीफ्रेज मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। जैसे इसने लिखा है सर्टेन डिजीज हैव disappeared, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, it should be certain diseases have disappeared thanks to better something and healthcare। तो यहाँ पे what we have to do, देखिए मेरे पास हेल्थ केयर एक ऐसा वर्ड है जिसको शायद एग्जामिनर रिफ्रेश कर तो सकता है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि हेल्थ केयर को ज़्यादा से ज़्यादा वो हॉस्पिटल लिख सकता है, और इसके अलावा जैसे हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल, ऐसे वर्ड्स वो यूज़ कर सकता है। उसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से हमें कुछ अगर स्कैन लैंग्वेज दिख रही है, तो जैसे कॉन्टेक्ट है, तीसरे वाले में डिजीज कॉजिंग डैश आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन हॉट टेम्परेचर। यहाँ पे वेरी नाइस स्कैनिंग लैंग्वेज। ओके, देन समथिंग इज देयर लाइक पोल्यूशन। ओके, पोल्यूशन को भी वैसे वो रिफ्रेश कर सकते हैं, but still we can give particular fuel. Okay, then growth of cities, then this something is one disease that is growing after having been eradicated. Okay, eradication, physical barriers, a physical barrier such as dash. Okay, physical barrier such as dash can prevent hospital. Okay, hospital again that we have to find out. तो इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया, सॉरी, इसको मैंने अभी जो है वो मार्क डाउन कर लेना अपने पेंसिल के साथ। अभी जो मैं पीसी पे कर रहा हूँ, आप लोगों ने पेंसिल के साथ इन जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आपने हाईलाइट या अंडरलाइन कर लेना है, और पैसेज में जाके इनको स्कैन करना। अभी हमने आंसर नहीं ढूंढने हैं, तो अभी हम ये जो मैंने वर्ड्स जो अभी मैंने अंडरलाइन करे हैं, इनको आपने पैसेज में जाके स्कैन करना है कि यहाँ से कहाँ से उसने मतलब ये समरी या जो भी ये क्वेश्चंस हैं गैप फिल्स वाले कहाँ से उठाए हैं। सो दैट मैटर्स अ लॉट। अभी हम इसको थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आपने स्कैनिंग शुरू करनी है। जैसे बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करेंगे, लोकेशन इसकी कहीं भी हो सकती है। तो बिगनिंग से हम स्कैनिंग शुरू करेंगे। जैसे ये कुछ वर्ड्स अभी मैंने जो हाईलाइट करे हैं इनको अपने दिमाग में रखना और पैसेज में चले जाना है। जैसे हेल्थ केयर, कॉन्टैक्ट, डैम्प रीजन्स, पोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ सिटीज़, इरेडिकेशन या इरेडिकेटेड, हॉस्पिटल, ये सब वर्ड्स यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू स्कैन, व्हेन यू स्किम थ्रू द पैसेज। सो हम स्कैनिंग शुरू करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आई कैन इमीडिएटली सी
this word, this is healthcare, I will highlight it. Then I can see contact. तो अभी मैं देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से स्टूडेंट्स को यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि भी सॉल्व नहीं करना है। अभी मेरे को नहीं पता आंसर क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो, बट मेरे को कुछ वर्ड्स जो हैं वो मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने में मेरी हेल्प करेंगे। ओके, सो जैसे हेल्थ केयर हो गया, कॉन्टेक्ट, देन आई कैन सी सम अदर वर्ड्स like in the B paragraph. Let me see if I find something. Geographical. What was the third question? I forgot that. Yeah, damp regions, pollution, growth of cities. Okay, damp region, hot damp regions. Let me see if something is there. Yeah, here we got and damp environment, that I will highlight it. So ये देखिए इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस उसने कहाँ से बनाए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन उसकी क्या है. देन वी हैव समथिंग लाइक पोल्यूशन समवेयर. This is scan. Okay, here we got the word pollution. I think next word was eradicated something. Growth of cities, eradicated, hospital. Okay, growth of cities, eradication, healthcare, hospitals. Let's see, growth of cities, or maybe urbanization something. Eradication, I got it here. Okay, and then programmers, diseases is everywhere. That is not going to help us. Okay, hospitals, I just got it here. So what I can understand कि उसने क्या किया है कि उसने ये जो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस जो हैं वो मे बी फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स में से उठाए हैं, और मे बी 1 या 2 क्वेश्चन नेक्स्ट में से, और फिर वो चला गया, ही जस्ट वेंट थ्रू ऑल डाउन टू द पैसेज. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यू कैन से जी सेक्शन में जाके इसने लास्ट कुछ हॉस्पिटल वगैरह जो मैंने मार्क डाउन किया था वो यहाँ पे मिला मेरे को. ओके, सो एनीवे, जैसे मैंने इसको मार्क डाउन कर लिया, अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि अभी मैंने इसकी ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटी चेक करनी है, देन फिर हम देखेंगे लैंग्वेज कैसे हमारी हेल्प करती है. सर्टेन डिजीजेस हैव डिसअपीयर्ड थैंक्स टू बेटर डैश एंड हेल्थ केयर. ओके, तो यहाँ पे ग्रामर आई डोंट थिंक कि कुछ हेल्प मिल रही है कि ये सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, एस के साथ आएगा, वट एवर, देर इज़ नो हेल्प. सेकेंड क्वेश्चन इज बिकॉज देर इज मोर कॉन्टेक्ट पीपल between people dash are losing their usefulness. You can immediately see this this is a verb. It means कि जो पीछे इसके noun आएगा it must be with s, means I need a plural noun. For example, because there is more contact between people dash are losing their usefulness. कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी यूजफुलनेस जो है वो ख़त्म हो रही है? तो मे बी यहाँ पे आई थिंक एस के साथ आना चाहिए, तो आई विल जस्ट नोट इट डाउन, प्लूरल. Then disease causing dash are most likely to be found in hot damp regions, means disease किसकी वजह से हो रहा है, वो ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, मीन्स कि यहाँ पे फिर से आई हैव अ वर्ब, प्लूरल वर्ब, एंड दैट इज हेल्पिंग अस. I need plural with s. One cause of pollution is that burn a particular fuel. Okay, so
यहाँ पे देखिए, दिस एग्जामिनर हैज़ मेड दिस क्वेश्चन द मोस्ट ट्रिकीस्ट वन, बिकॉज उसने क्या किया, उसने लिखा है यहाँ पे इज। बहुत सारे स्टूडेंट इसकी वजह से यहाँ पे दे विल राइट सिंगुलर नाउन, बट दैट आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग। आई नीड ए प्लूरल हेयर। वाई? बिकॉज अगर हम इसका रेफरेंस पर नाउन देखें, या जो इसने दैट यूज़ करा है, इसने लिखा वॉज वन कॉज ऑफ पोल्यूशन, जो पोल्यूशन का एक रीज़न है वो यहाँ पे मेंशन किया है, और उसके बाद उसने लिखा है जो जलाते हैं कुछ फ्यूल, पर्टिकुलर फ्यूल जलाती हैं या जलाते हैं वट। तो यहाँ पे भी मेरे को प्लूरल चाहिए। वाई आई गॉट इट, यहाँ पे प्लूरल चाहिए बिकॉज यहाँ पे जो इसने रेफरेंस पर नाउन के बाद जो वर्ब यूज़ करी है उसके साथ एस नहीं है। अगर उसके साथ एस नहीं है, अगर किसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आता है तो ही विल अंडरस्टैंड कि इसके साथ अगर एस होता तो मीन्स पीछे मेरा सिंगुलर नाउन यहाँ पे आना था। लेकिन अगर इसके साथ एस नहीं है तो इट मीन्स दिस जो particular noun hai, this is going to be plural. So again I need plural. The growth of city has often impact on nearby something. I don't think कि इसमें कुछ ग्रामर हेल्प कर रही है। डैश इज वन डिजीज दैट इज ग्रोइंग आफ्टर हैव बीन इरेडिकेटेड। एक बारी खत्म हो गया था, अब दोबारा से वो डिजीज जो है, डिजीज का शायद नाम आना चाहिए लेकिन यू भी सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पे एस लिख रहा हूँ, मीन्स कि सिंगुलर आना चाहिए इसमें, क्योंकि ये इज़ लगा हुआ है। इज़ जो है इज अ वर्ब दैट इज़ हेल्पिंग अस टू फाइंड आउट द कैटेगरी ऑफ नाउन। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन आना चाहिए, जो डिजीज़ का नाम चाहिए जो ख़त्म होने के बाद दोबारा से ज़िंदा हो गया है, समथिंग लाइक दैट ही सेइंग। अ फिजिकल बैरियर सच एज डैश कैन प्रिवेंट। तो यहाँ पे मॉड्यूलर वर्ब इसने यूज़ करी है। मॉड्यूलर वर्ब्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस वेदर द नाउन before that modular verb is going to be singular or plural, but still we have an article over there and that is helping us. It means something singular is going to, so see, अभी मैंने कुछ भी फाइंड आउट नहीं किया है, जस्ट मैंने अभी लोकेट किए हैं क्वेश्चंस, और लोकेट करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है सर, इतना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बिलीव मी, अगर आप 5 to 6 रीडिंग इस मेथड से करते हो तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल सही जाएगी। तो देखिए मेरे को कितने आंसर्स जो हैं वो अभी बिना कुछ एफर्ट लगाए मीन्स पता चल रहा है सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा। तो जैसे मेरे को पता है कि प्लूरल एस वाला वर्ड चाहिए, तो मैं जैसे पीछे पैसेज में उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे को पता चलेगा कि एस वाले वर्ड्स कहाँ पे हैं, और उसके ऊपर मेरा ध्यान जाएगा डायरेक्टली, और बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो मेरे दिमाग से एलिमिनेट हो जाएंगे, जो कि आंसर गलत होंगे, या मे बी मैं गलत आंसर लिख देता अगर मेरे कोई सिंगुलर प्लूरल वाली स्ट्रैटेजी नहीं पता है। तो अभी हम पैसेज में जाएंगे, तो देखते हैं कि कैसे ये हमारी हेल्प करती हैं चीज़। सर्टेन डिजीजेज हैव डिसअपियर्ड थैंक्स टू बेटर डैश एंड हेल्थ केयर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है कि ये कह रहा है कि बहुत सारे डिजीजेस ख़त्म हो गए हैं थैंक्स टू बेटर डैश, और ये उनका थैंक यू कर रहा है दो चीज़ों का। एक तो कह रहा, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, थैंक्स टू बेटर डैश एंड बेटर हेल्थ। एक तो कह रहा है हेल्थ केयर बेटर हो गया है, और दूसरी चीज़ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि दूसरी कौन सी चीज़ बेटर हुई है जिसकी वजह से डिजीज़ जो हैं वो बिल्कुल वी कैन से डिसअपियर हो गए हैं या कम हो गए हैं। सो वी विल गो टू द पैसेज। यहाँ पे हमें इसकी लोकेशन मिली थी, सो हम इसको रीड आउट करते हैं। वाइल मैनी डिजीजेस दैट अफेक्ट ह्यूमन हैव बीन इरेडिकेटेड। इरेडिकेटेड मीन्स वहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया है डिसअपियर्ड। यहाँ पे ये रीज़न बता रहा है ड्यू टू, किसकी वजह से वो हुए हैं, वो चीज़ हमें बता रहा है। ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन वैक्सीनेशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। सो इम्प्रूवमेंट को, इफ़ यू विल सी, इम्प्रूवमेंट जो वर्ड है उसको एग्जामिनर ने रिफ्रेश करके उसको यहाँ पे ही हैज़ चेंज्ड इट इनटू बेटर, थैंक्स टू बेटर डैश एंड हेल्थ केयर।
So healthcare is already there in the question. So what we need, improvement in vaccination. So vaccinations is going to be the correct answer. So we just change it. Vaccination. I will highlight it, otherwise students will be confused. One moment. Okay. So vaccination is not getting highlighted. Okay. Next question, if we look at, because there is more contact between people, something are losing their usefulness. So here we need a noun with S. So because of the contact of the people, something is or are losing their usefulness. So what are losing their usefulness? Let me see. Because of more contact of the people. So we will see directly, in a world that is far more globalized than even before, people come into contact with one another through travel and living closer to each other. Okay, so in this sentence we are getting the information that people are getting into contact. As a result, what happens? As a result, this sentence is going to be very, very important for us. This sentence may be the sentence that can help us to locate and find out the right answer. Superviruses and other infections resistant to antibiotics are becoming more common. So here what we need a noun with S. But according to the requirement of the question, let me see again. Because there is more contact between people that are losing their usefulness. What are losing their usefulness? I will show you. Superviruses and other infections resistant to antibiotics. मीन्स ये कह रहा है कि ऐसे वायरस जिनसे कि ये एंटीबायोटिक्स हमें बचाती हैं, एंड ऐसे वायरसेस और इन्फेक्शंस जिससे कि as a result superviruses and other infectious resistant to antibiotics are becoming more and more common. तो एस वाला वर्ड यहाँ पे यूजफुलनेस किसकी ख़त्म हो रही है? एक तो ये वाला वर्ड है, एक इन्फेक्शंस है, एक सुपर वायरसेस, लेकिन ये दोनों जो हैं इनकी वजह से यू कैन से कि वायरस की वजह से तो इन्फेक्शन होता है, तो रेजिस्टेंट इनके क्या हैं, इनके जो रेजिस्टेंट्स हैं वो हैं एंटीबायोटिक्स। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए 99.9% इट मस्ट बी एंटीबायोटिक्स। इनकी जो मतलब रेजिस्टेंस है, लेवल है, उनकी लड़ने की शक्ति है वो ज़्यादा कम हो रही है। मीन्स कि वो जो वायरस और जो अदर इन्फेक्शन वो इसके ज़्यादा कॉमन होती जा रही। मीन्स वो अभी एंटीबायोटिक्स इतने ज़्यादा वो काम की चीज़ नहीं रही है, वी कैन से डायरेक्टली। सो दैट इज गोइंग टू बी एंटीबायोटिक्स। अगेन आई विल हाईलाइट दिस। नेक्स्ट, disease causing dash are most likely to be found in hot temperatures. hot temperatures में कौन से चीज़ ज़्यादा पाई जाती है जिसकी वजह से डिजीज़ होते हैं? देखो ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना, डिजीज़ कॉजिंग डैश, डिजीज़ कॉजिंग डैश, ये आपको राइटिंग में भी ऐसे कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं। यहाँ पे भी वो, वहाँ पे भी एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स डाल देते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता है कि मेरे को रीजंस पूछे हैं या मेरे को सोल्यूशन पूछा गया है। सो डिजीज कॉजिंग समथिंग आर मीन्स जिसकी वजह से डिजीजेस फैल रहे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं कि डिजीजेस कहाँ पाए जाते हैं, ये कह रहा है डिजीज कॉजिंग डैश आर मोर लाइकली टू बी फाउंड। अगर ये आर हम बात करें तो आर जो एग्जामिनर ने यूज़ किया, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। बहुत सारे स्टूडेंट शायद इसको ये वाली चीज़ समझ लें कि डिजीज़ की वजह से यूज़ किया, डिजीज़ की वजह से यूज़ किया था, तो क्योंकि डिजीज़ तो है नहीं है यहाँ पे फिर इज़ होना चाहिए था, बट
यहाँ पे आर है, इट मीन्स डिजीज जिसकी वजह से हो रहे हैं वो कहाँ पे मिलते हैं हमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स गो बैक टू द पैसेज एंड सी. Okay, here we have the location. Perhaps one of the most obvious example of this idea is malaria prone area, which are usually tropical regions that foster a warm and damp environment in which mosquitoes that can give people this disease can grow. Malaria is much less of a problem in high altitude desert, for instance. So अभी अगर मैं बात करूं तो मेरे को अगर ज़्यादा समझ में कुछ नहीं भी आया है, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका ग्रामर का बेस वीक है तो भी आंसर्स मिल सकता है, बिकॉज मेरी को ग्रामर हेल्प करेगी. यहाँ पे मेरे को जो वर्ड चाहिए विद द एस, और वो कहाँ पे मिलते हैं. तो विदाउट एनी एफर्ट आई विल फाइंड आउट दिस आंसर. और लोकेशन की अगर बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से एस वाले वर्ड जो सिंपली आप अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो रीजन्स तो ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दे रखा है. तो हियर इज़ द आंसर मॉस्क्यूटोस. और कोई अगर आपको लग रहा है डेजर्ट्स तो आ ही नहीं सकता है, तो सिर्फ दो ही वर्ड है मेरे पास जो एस वाले हैं, कि ये है और एक ये है. तो व्हाट शुड बी द आंसर. वैसे यहाँ तक ही है इसकी लोकेशन, आगे उसने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, आगे मतलब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहा है मलेरिया के बारे में. तो कहाँ पे ये सब जो फॉरेस्ट या फॉस्टर अ वार्म एंड डैम्प इन्वायरमेंट में मेरे को क्या चीज़ मिलती है. मॉस्किटोस. मॉस्किटोस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Mosquitoes is going to be the correct answer, and I will highlight it so that students don't get confused. Next, one cause of pollution is something that burn a particular fuel. तो पोल्यूशन का एक रीज़न क्या है, एक कॉज क्या है. वन कॉज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का एक कॉज क्या है जो जिसमें कि कोई फ्यूल जलता है. तो इसकी लोकेशन वी हैव टू फाइंड आउट. Pollution is there, okay. Geographical factors influence the health and well-being of the population in obviously in many large cities. The wind. The wind is not strong enough to clear the air of massive amount of smog and pollution that cause asthma. इसको बहुत सारे स्टूडेंट शायद अस्थमा पढ़ेंगे, बट इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो एज़मा है. लंग प्रॉब्लम्स, आई साइट इश्यूज एंड मोर इन पीपल हु लिव देयर. तो हमें जो चाहिए आंसर वो चाहिए कि इसका कॉज क्या है, मीन्स कि पोल्यूशन का एक रीज़न क्या है जिसमें क्या बनता है. तो यहाँ पे तो नहीं है पोल्यूशन के बारे में, लेकिन यहाँ से इसने स्टार्ट किया. पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स massive number of cars, okay, being driven in addition to factories that run on coal power. So this sentence is going to help us with our right answer. यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो कह रहा है कि एक तो ये भी रीज़न है, मैसिव कार जो चल रही, बहुत ज़्यादा गिनती में कार जो ड्रिवन हो रही हैं, और इन एडिशन टू इसके अलावा फैक्ट्रीज जिसमें कि कोल पावर जलती है. तो एस वाला आंसर एक तो कार्स है और एक दूसरा फैक्ट्रीज है. तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसमें कुछ जलता है, वो कुछ जलाते हैं, वो कौन सी चीज़ है. दैट इज गोइंग टू बी फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. We'll just highlight it. Next, the growth of city has an impact on nearby dash. The growth of factories
The growth of factories, the growth of cities often has an impact on nearby something. जो cities की growth है उसका नज़दीक वाली किसी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है. तो cities की growth होने से किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, that we have to find out. Right. Rapid industrialization of some countries in recent year has led to cutting down of forest to allow for expansion of big cities. This sentence is going to help us with the correct answer. So ये कह रहा है कि रैपिड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है उसकी वजह से क्या हुआ, हैज़ लेड टू, लेड मीन्स हैज़ रिजल्टेड समथिंग. इसकी वजह से क्या रिजल्ट निकला है कि बहुत सारी ट्रीज जो हैं फॉरेस्ट में से, बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं उनकी कटिंग हो गई है. और इस क्यों हुई है, अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिग सिटीज़, ताकि हम सिटीज़ को थोड़ा और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें. वही चीज़ वो क्वेश्चन में कह रहा है. तो आंसर जो होना चाहिए, इट मस्ट बी फॉरेस्ट. So we can say the growth of cities often has an impact on nearby something. So nearby something means nearby forest. So I will highlight it. Next question is, it is going to be singular noun. Something is one disease means we need a name of a disease that is growing after have been eradicated. मतलब ये एक बार ही ख़त्म हो गया था, उसके बाद दोबारा से ये जीवित हो गया है. तो वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा डिजीज़ है. वी नीड अ नेम ऑफ डिजीज़. सो आई विल डायरेक्टली मूव टू दैट पैसेज व्हिच मेक्स वाटर पोल्यूशन. ओके, it is in a situation like field geography comes. Okay, we have to see the name of disease. Here is the name of disease, malaria. क्या ये दोबारा से जीवित हो गया है, इसको देखना पड़ेगा. मलेरिया प्रोन एरियाज आर स्टिल फाइटिंग टू फाइंड बेटर क्योर. मे बी एनी अदर नेम ऑफ द डिजीज वी हैव टू फाइंड आउट. एनी अदर नेम ऑफ द डिजीज. एक तो मलेरिया था, दूसरा कौन सा है जो दोबारा से जीवित हो गया, पीछे होना चाहिए. It is in the situation like these that the field of health geography comes into its own. It is an increasing important area of study in a world where diseases like polio are re-emerging. Re-emerging means कि वो दोबारा से जो है वो we can say कि वो जीवित हो गया. Okay. Respiratory disease continue to spread and malaria prone areas are still fighting. Okay. तो ये एक ऐसा डिजीज है पोलियो. पोलियो is going to be the correct answer because बहुत ही क्लियर आंसर है. और ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो पोलियो, polio is one disease. Polio is one disease that is growing after have been eradicated. Re-emerging and growing after having been eradicated means they are the similar ones. Next question is, a physical barrier such as dash, singular noun चाहिए, can prevent people from reaching hospital. तो कौन सी ऐसी फिजिकल बैरियर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें हॉस्पिटल जाने से बचाती है. लोकेशन इसका हमने मार्क डाउन किया था यहाँ पे, हॉस्पिटल. ओके, कौन सी ऐसी चीज़ है
जो हमें हॉस्पिटल जाने से बचाती है। तो अगर हम लोकेशन की बात करें, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, फॉर इंस्टेंट इट मे बी डिफ़िकल्ट टू गेट मेडिकल अटेंशन because there is a mountain between their village and nearest hospitals. Yes, so कौन सी चीज़ है जो हमें बचाती है, कैन प्रिवेंट पीपल फॉर, जो मतलब प्रिवेंट करती, सॉरी, जो रोकती है लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने से। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इट्स वेरी क्लियर, इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू गेट मेडिकल अटेंशन, लोगों के लिए डिफ़िकल्टी आएगी मेडिकल अटेंशन लेने में, बिकॉज there is a, this a is going to help us because singular noun is mountain, so mountain is going to help us. So mountain is going to be the correct answer. All right, so I hope you have enjoyed it. So you can see how helpful grammar is in our IELTS reading. So please subscribe my channel. एंड अभी जो एक दूसरा पार्ट हमारा रह गया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और ये मेरा वैसे भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट वेरी परफेक्ट। सो होपफुली अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा है तो नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा क्वालिटी को इम्प्रूव करके, थोड़े जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं अभी इस वीडियो में, होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं करेंगे। और प्लीज़ कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये थोड़ा हेल्पफुल लगा, से थोड़ी हेल्प मिली है आप लोगों को। अगर मिली है तो डेफिनेटली आई विल क्रिएट सम मोर वीडियोस, और ये वाला सेक्शन भी हम सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can. Thank you so much.